کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام کا مارد کے ساتھ مقابلہ۔ آپ سبھی یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو کربلا میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن آپ کے کربلا کے میدان میں بہت سے مقابلے ضرور ہوئے تھے۔ بہت سے پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور بڑے بڑے یزیدی لشکر کے بہادروں کو واصل جہنم کیا تھا، اور یہ سارے واقعات تاریخی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن میں سے ایک واقعہ میدان کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام اور مارد پہلوان کا مقابلہ ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مارد سے کیسے مقابلہ کیا، مارد کیسے حضرت عباس علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اور مارد پہلوان کے سب سے خطرناک اور بے قابو گھوڑے کو حضرت عباس علیہ السلام نے کیسے اپنے قابو میں کر لیا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت عباس علیہ السلام جو پانی لانے ہی کے قصد سے روانہ ہوئے تھے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ دشمن اگرچہ آپ کو گھیرے ہوئے تھے، لیکن آپ کی پیش قدمی نہ رکی۔ آپ کشتوں کی پشتیں لگاتے ہوئے کافی دور نکل گئے اور آگے بڑھ کر رجس بڑھا۔ جو ہی حضرت عباس علیہ السلام نے رجس بڑھا تو لشکر مخالف آپ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ نے شجاعت الویہ کے جوہر دکھائے، بڑے بڑے بہادر فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ مارد ابن صدیف تغلبی نے جو بہادری کا یہ رنگ دیکھا تو جھنجھلا کر کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ارے ایک بہادر سارے لشکر کو قتل کیے ڈالتا ہے، اگر تم اس کے اوپر ایک ایک مٹھی خاک ڈالو تو یہ اسی میں دب کر اسی وقت مر جائے، مگر افسوس تمہاری کچھ بنائی نہیں بنتی۔ اس کے بعد آواز اہل چیخ کر بولا، ایھا الناس، میں کہتا ہوں کہ جس کے گلے میں بیعت یزید کا طوق ہے اور جو اس کی اطاعت اور جو اس کے احاطے بیعت میں موجود ہے، فوراً اس لشکر سے الگ ہو جائے کہ میں تنہا اس نوجوان کے لیے کافی ہوں جس نے بڑے بڑے ناموران لشکر کو فنا کر ڈالا ہے۔ جب یہ متکبرانہ آواز شمر بن ذوالجوشن کے کانوں تک پہنچی تو اس نے فوراً کہا کہ اچھا تو ہی لڑ، ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں اور جنگھان سے اپنا قدم سرکائے دیتے ہیں اور یزید کو سارا واقعہ خبر کیے دیتے ہیں۔ اس کے بعد شمر نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ فوراً الگ ہو جائیں۔ یہ حکم پاتے ہی سارے لشکر والے پہلو تہی کر بیٹھ گئے اور دور سے تماشا دیکھنے لگے۔ مارد بن صدیف فیل مستی کی طرح جھومتا ہوا حضرت عباس علیہ السلام کی طرف تنہا چلا۔ اس کے بدن نجس پر صحنی زرہ اور سر پر فولادی خود تھا اور ایک اشکر پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک نہایت ہی لمبا نیزہ تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ مارد تنہا آ رہا ہے، آپ فوراً اس کی طرف بڑھے اور اسے بالکل متصل ہو گئے۔ وہ گروہ کا مارا فوراً چلا کر بولا کہ اے نوجوان، خیریت اسی میں ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے تلوار پھینک دے۔ وہ لوگ جو پہلے لڑنے آئے تھے وہ سب نہایت ہی سست اور تیرے اوپر رحم کرنے والے تھے، لیکن میں ایسا شخص ہوں کہ خداوند عالم نے میری اصل خلقت سے نرمی اور خدا ترسی کو نکال ڈالا ہے اور اس کے عوض میں شقاوت اور عداوت میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ اے نوجوان، یاد رکھ، میں وہ ہوں کہ جس پر حملہ ہوا اس کو ذلیل کر چھوڑا، جس پر تلوار اٹھائی اس کو فنا کر ڈالا۔ اب تیری جوانی ملاحت پر جب نظر کرتا ہوں طبیعت میں نرمی دوڑ جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تجھے تہتیگ کر ڈالوں، لہٰذا میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو رزم گاہ کی زمین کو دم بھر میں چھوڑ دے اور یہاں سے چلا جا اور اپنے اچھے خاصے نفس کو ضائع و برباد نہ کر۔ دیکھ، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، یعنی ابھی کہہ رہا ہوں کہ چلا جا، اگر عقل سے کام لیا تو بچ جائے گا، ورنہ تیرا بچنا بہت ہی دشوار ہے۔ اے نوجوان، آج سے قبل میں نے کبھی کسی پر رحم استعمال نہیں کیا۔ پھر مارد کہنے لگا، اے عباس بن علی، میں تم کو کاٹنے والی تلوار کی ضرب سے ڈرا کر نصیحت کرتا ہوں، اگر تم میری نصیحت قبول کرو گے تو اچھے رہو گے۔ ابتدائی زمانہ سے آج تک تمہارے علاوہ کسی جوان پر میرا قلب نرم نہیں ہوا،
देखो मेरे इस कौल को कान धर के सुनो। देखो मैं तुमको अतात की नसीहत करता हूँ। अगर तो के अतात गर्दन में डाल लोगे तो बड़े मजे की जिंदगी बसर होगी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इन अशार के सुनते ही कहना शुरू कर दिया कि ए दुश्मन खुदा, जो कुछ तूने कहा मैंने गोशे ज़ाहिरी से सुना, मगर तेरी मोहब्बत बेकार है। मैं तेरी अतात कर लूं ये नामुमकिन है। अरे मलऊन, तू मुझे अपने से डराता है, हालांकि अल्लाह ताला से डरने वाला किसी और से हरगिज गुरेज नहीं कर सकता। मैं अली अलैहिस्सलाम का फर्जंद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भाई और गुलाम हूँ। उनके कदमों पर अपनी जान निसारी को ऐन अतात अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझता हूँ, और यकीनन उनकी अतात ऐन अल्लाह ताला और अतात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है। फिर मैं तुझसे डरूं ए मलऊन? तू जानता है कि मैं शजरे रिसालत की एक शाख हूँ, और जो ऐसा हूँ जाहिर है उसका तवक्कुल अल्लाह ताला पर कितना होगा। अरे वो शख्स बुराइयों से कैसे मुतसिफ हो सकता है और अतात गैर में दाखिल हो सकता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास कराबतदार हो। और जबकि मेरे बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबी तालिब हैं, तो मैं कैसे तलवार की मौत से डर सकता हूँ? तुझे मालूम है कि मैं किसी काफर और गादर से खौफ नहीं खा सकता, और ना मैं अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ कुछ कर सकता हूँ। ए काफर, मैं खानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फर्जंद हूँ। अगर तुझको ये ख्याल है कि मैं तेरी अतात कर लूँगा तो ये बिल्कुल गैर मुमकिन और महाल है। मैं हरगिज ऐसा शख्स नहीं हूँ कि मौत से खौफ करूँ और मौत हमर से डरूँ, और मैं खूब जानता हूँ कि जन्नत दुनिया से बहुत ही बेहतर है। और तुझको ये भी मालूम है कि बाज कमसन अक्सर मिशन से बेहतर होते हैं। हम ज़माना मुखालिफ के जुल्म पर सब्र कर रहे हैं और मौत को रोक नहीं सकता। तू मत घबरा, हर चीज फना होने वाली है, और मुझ जैसा बहादुर कभी घबरा नहीं सकता। अगर जमाने ने हम पर तीर चलाए और हमारी जमात को मुंतशिर कर दिया, और जमाना में ऐसे वाकयात बहुत से हुए हैं कि नौजवानों ने तजुर्बेकारों को मौत के घाट उतारा है। जब मार्द ने उसका कलाम बलागत निज़ाम को सुना तो मिसले अकाब शगिस्ता बाज इब्ने हैदर अलैहिस्सलाम की तरफ उनके कत्ल को आसान तस्वुर करते हुए निहायत ही तेजी से झपटा, और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसके आने से कोई हरस ना किया और उस मलऊन को हमले की सूरत में अपनी तरफ से ना रोका। वो अपनी दिलेरी के असबाब के लिए इतना बढ़ा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की लंबी सनान के बिल्कुल करीब आ गया। फन सिपाहगिरी के माहिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने जोरदार हाथ को बराकर नेज़े की आनी को थामकर उस जोर से झटका दिया कि करीब था कि मार्द मुंह के बल गिर पड़े। उस झटके का ये नतीजा हुआ कि मार्द ने घबरा कर नेज़े को हाथ से छोड़ दिया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उस पर कब्जा कर लिया। ये एक ऐसा वाक़या था कि मार्द को आब होना पड़ा और तकब्बुर का निहायत तल्ख मज़ा चखना पड़ा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसी मलऊन के नेज़े को उसकी तरफ बढ़ाकर निहायत शिद्दत से हमला किया और फरमाया कि ए मलऊन, मैं चाहता हूँ कि तुझको इस नेज़े से दम भर में बेदम कर दूँ और मौत के जाम से सैराब करके हमेशा के लिए मीठी नींद सुला दूँ। मार्द मारे खौफ के कांपने लगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसकी अज़तराब आगईन कैफियत का पता चलाकर घोड़े की साख पर उसी का एक नेज़ा मारा। घोड़ा फौरन अल्फ हो गया और वो मलऊन जिस्म बेरूह की तरह जमीन पर आ गिरा। चूंकि वो मलऊन निहायत ही मोटा था, इसलिए वो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से पैदल जंग आजमा ना हो सका। सच तो ये है कि जमीन पर गिरते ही उसका सारा बदन खौफ के मारे फूल गया और वो उस लायक ना रहा कि आपसे पैदल मुकाबला करे।
लश्कर के किसी जबरदस्त बहादुर की शिकस्त पर यूं ही एक अजदराब पैदा हो जाता है। फिर ऐसा बहादुर जो अपनी आप नजरिया समझता हो, उसकी शिकस्त पर सारा लश्कर अजदराब पजीर ना हो। उसके गिरने का नतीजा ये हुआ, सिफोए लश्कर में हलचल मच गई। शिमर मलऊन ने बेताबाना लश्कर मार्द को पुकारा कि अरे गजब हो गया, मार्द खुद सरजमीन पर गिर पड़ा है, तुम लोग फौरन उसके कंप में पहुंचो और एक दूसरा घोड़ा फौरन उसकी खिदमत में हाजिर करो। ये सुनते ही फौरन एक गुलाम हबशी सारफा नामी एक घोड़े को लेकर हाजिर हुआ, जिसका नाम ताविया था, जो तेज रवि में हवा से भी 4 कदम आगे ही रहता था। मार्द की नजर जब गुलाम हबशी पर पड़ी और उसने देखा कि सारफा ताविया को लिए हुए आ रहा है, तो फौरन चिल्लाया कि ए गुलाम, मौत आने से पहले तू ताविया को मुझ तक पहुंचा दे। गुलाम घोड़ा लेकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और चाहा कि किसी न किसी तरह जल्दी से जल्दी ताविया को मार्द तक पहुंचा दे, ताकि वो उस पर सवार होकर मुकाबला कर सके। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब सारफा को देखा कि वो ताविया को लिए हुए निहायत ही तेजी से आ रहा है, तो फौरन उसकी तरफ बढ़कर गुलाम की गर्दन पर एक पुरजोर नेजा लगाया। वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और अपने खून में लूटने लगा। आपने अपने घोड़े को छोड़कर फौरन ताविया पर सवारी की और तमाम सिफोए लश्कर को चीरते हुए अपने भाई की खिदमत में हाजिर हुए। जब मार्द ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की इस दिलेरी का मुतालिया किया, तो फौरन घबरा कर थराई हुई आवाज से लश्कर वालों को पुकारते हुए कहा कि हाय अब्बास मेरे घोड़े पर सवार हो गए हैं और मुझे यकीन है कि मुझको मेरे ही नेज़े से फना करेंगे। शिमर मलऊन ने जब ये आवाज सुनी, फौरन आपकी तरफ बढ़ा और उसके साथ साथ सन्नान बिन अंस नखई, खूली बिन यजीद असबही और जमील बिन मालिक हजाजी चले और उन लोगों के अकब में सारा लश्कर चला। सब ने अपने घोड़ों की बागें उठा ली और तलवारें बरहना कर ली। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब ये माजरा देखा, अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए भैया, इन दुश्मनान अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, ये आप पर हमलावर होना चाहते हैं। अभी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का कलाम ख़त्म भी ना हुआ था कि लश्कर निहायत ही तेज़ी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आ गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने ये माजरा देखते हुए फौरन मार्द की तरफ जाने की ठान ली और उसके पास जाकर आपने फरमाया कि मैं तुझे इस चीज का मजा क्यों ना चखाऊं जो तुझे जहन्नम की याद दिला दे। ये कहकर उसके हाथों पर जबरदस्त वार किया। उसके दोनों हाथ बिल्कुल बेकार हो गए। आपने उसके दूसरे नेज़े पर भी कब्जा कर लिया। जब मार्द ने अपने कत्ल होने का यकीन कर लिया, तो फौरन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करने लगा कि ए अब्बास अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के लिए मुझको छोड़ दो, मैं आज से आपका गुलाम हूँ। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुझ जैसे गुलाम को लेकर क्या करूँगा। उसके बाद आपने एक नेज़ा उसके कान पर ऐसा लगाया कि वो आर पार हो गया। फिर आपने और लश्कर वालों पर शेराना हमला करके ताविया को कावा देते हुए 250 सवारों को फना के घाट उतार दिया और उससे कबल 520 दुश्मनों को कत्ल कर चुके थे। लिहाजा सारा लश्कर खौफ से दरम बरम हो गया और सभी मैदान छोड़कर भागने लगे।